Before clerking with me as a judge of the Supreme Court, he was an intern in my office. After having completed his clerkship, he went on to do his postgraduate degree at Harvard Law School and has now returned to give back to the Indian judiciary. I have witnessed with great admiration the dedication with which he has made a difference to our court and strategically advocated for the causes he believes in. Frost's concluding lines capture the essence of such choices. Two roads diverged in a wood, in a forest, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Your education at RML NLU has provided you with a strong foundation, but it is your willingness to evolve and your ability to embrace change that will truly define your success. As Virginia Woolf famously wrote, a self that goes on changing is a self that goes on living. The essence of life is change. Whether you look at it in a biological sense, whether you look at it in a legal sense, or whether you look at it in a spiritual sense. Remember, the law is not a static field. It evolves with society, reflecting its changes and addressing new challenges. As judges, with our grey hair, we too continue to change and evolve, even when we are perhaps almost double your age. My companion judges and I were once tied to traditional modes of adjudication, relying on bulky paper files. Every Sunday and Thursday, in anticipation for the Monday reading and Friday reading, my staff in the office would carry 80 to 100 files on their shoulders. However, courts today have embraced technology to increase access to justice and bring litigants closer to the courtroom. I run a completely digital and paperless court. Similarly, we stay abreast of evolving areas of law that have significantly changed since our days as law students and lawyers, including issues involving artificial intelligence and technology-related disputes. To remain true to our role as guardians of our transformative Constitution, we continue to learn and unlearn to keep up with the ever-evolving social values. On today's occasion, I also wanted to share my thoughts on something that I have been thinking about for some time now. How can we make law and legal education accessible to millions of Indian citizens? हमारा देश विविधताओं का देश है, चाहे भाषा के आधार पर हो या फिर क्षेत्र के आधार पर। उत्तर प्रदेश में ही अलग अलग बोलियां हैं, डायलेक्ट्स हैं। जहां लखनऊ में हिंदुस्तानी सुनने को मिल जाती है, वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भोजपुरी भाषा का असर और प्रभाव है। ऐसी स्थिति में मेरे मन में यह सवाल उठता है कि न्याय और संविधान के मूल्यों को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए। कानून क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा पर जोर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मामलों की सुनवाई अंग्रेजी भाषा में होती है। एक तरफ जहां जज और वकील अंग्रेजी भाषा को जानते हैं या जानने की कोशिश करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि अपना केस लेकर आए आम नागरिक में यह समझ ही नहीं है कि कोर्ट में क्या बहस हो रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में मैंने ऐसे कई निर्देश दिए हैं, स्कीम्स अपनाई हैं, जिससे न्याय की प्रक्रिया को आम लोगों के लिए आसान बनाया जा सके। उदाहरण के तौर पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंग्रेजी में दिए गए निर्णयों का भारत के संविधान में प्रचलित विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है, जिससे आम जनता भी समझ सके कि निर्णयों में आखिर लिखा क्या गया है। आज 1950 से लेकर 2024 तक सर्वोच्च न्यायालय के 37,000 निर्णय हैं, रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं। सारे 37,000 जजमेंट्स का हिंदी में अनुवाद हो गया है और ये सेवा सब नागरिकों के लिए मुफ्त सेवा है, डिजिटल SCR के रूप में। तो मैं आपको आग्रह करूंगा कि इसका आप जरूर उपयोग कीजिए
और ताकि आपकी बहस ना ही ज़्यादा इफेक्टिव रहो, प्रभावशाली रहे, पर जो आपके पीछे क्लाइंट बैठा है, नागरिक बैठे हैं, उनको समझ में तो आ जाए कि आप क्या बहस कर रहे हैं। इसी तरह मैं यह अक्सर अपने सहयोगियों एवं देश के तमाम शिक्षाविदों से विचार विमर्श करता हूं कि कैसे कानून की पढ़ाई को सरल भाषा में पढ़ाया जा सके। जैसे कि संविधान के अलग अलग प्रावधानों में कुछ नियम और बुनियादी सिद्धांत हैं, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं इक्वालिटी, लिबर्टी, डिग्निटी, ड्यू प्रोसेस। हम उन सिद्धांतों को इंग्लिश में अच्छे से पढ़ाते हैं, पर हम अक्सर क्षेत्रीय भाषाओं में उन सिद्धांतों को समझाने में खुद ही असहज पाते हैं। अगर हम कानून के सिद्धांतों को सरल भाषा में आम जनता को नहीं समझा पा रहे हैं, तो इसमें कानूनी पेशे और कानूनी शिक्षा की कमी नजर आ रही है। इस बात का असर आम नागरिकों, विशेषकर समाज के कमजोर वर्ग पर पड़ता है। हमारे देश में आम जनता की सुविधा के लिए कई कानूनी योजनाएं बनाई गई हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष अपना कोई केस लेकर आना चाहता है, पर कमजोर आर्थिक या सामाजिक स्थिति की वजह से उसके पास वकील करने का जरिया नहीं है, तब न्यायालय अपनी तरफ से उसके लिए वकील उपलब्ध करवाता है। इसलिए इंग्लिश में इसे हम राइट टू फ्री लीगल एड कहते हैं। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति पर कोई कानूनी मुकदमा होता है और उसे जेल भेजा जाता है और उसके पास खुद का वकील करने के पैसे नहीं होते हैं, तब भी उसे मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया हमारे संविधान के प्रावधानों में निहित है। इन योजनाओं के बावजूद अगर हम उस व्यक्ति को सरल भाषा में उसके अधिकारों के बारे में नहीं बता सकें, तो यह योजनाएं अधूरी साबित रहेंगी। मैं एक और उदाहरण देता हूं। हमारे देश में प्रत्येक विधि विश्वविद्यालय को एक लीगल एड क्लिनिक यानी कानूनी सहायता केंद्र स्थापित करना अनिवार्य है। इन केंद्रों में अध्यापकों, वकीलों और छात्रों द्वारा आम जनता के लिए कानूनी सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह अपेक्षा है कि इन केंद्रों में जरूरतमंद लोग आएंगे और उनको कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा कई बार विश्वविद्यालय के विधि सहायता केंद्र अपने आसपास के गांवों में विधिक सहायता शिविर का भी आयोजन करते हैं। हाल ही में मैंने सुप्रीम कोर्ट के रिसर्च विभाग को यह आदेश दिया था कि इन सहायता केंद्रों को कैसे बेहतर किया जाए, इस पर विश्लेषण किया जाए। रिसर्च विभाग ने देश के 81 विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों का एक सर्वे किया है। विश्लेषण में पाया गया है कि आम जनता को अंग्रेजी भाषा न जानने की इसकी वजह से अपने अधिकारों और उससे जुड़ी योजनाओं को समझने में बाधा महसूस होती है। कहने का मतलब यह है कि विधि विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई अंग्रेजी में होती है और कई बार छात्र विधिक सहायता केंद्रों में कानूनी प्रक्रिया को आम जनता के सामने क्षेत्रीय भाषा में या क्षेत्रीय भाषाओं के संदर्भ में ठीक से नहीं समझा पाते। यहां पर मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, पर इस बात पर जोर दे रहा हूं कि कानून को पढ़ाने की प्रक्रिया हमें क्षेत्रीय भाषाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। और मैं सोचता हूं कि RMNL NLU को जरूर हिंदी में LLB कोर्स, BA LLB कोर्स शुरू करना चाहिए।